अभी मजिस्ट्रेट साहब चैम्बर से निकल के आए। करीब मेरे अंदाज से 300 साढ़े 300 पेज का उनका ऑर्डर है। अभी पूरा ऑर्डर मैं भी नहीं पढ़ पाया हूँ, इसलिए जो स्थिति आपकी वही मेरी है। समरी में उन्होंने ही मिहिर देसाई जो लॉयर हैं, काउंसिल हैं जाकिया जी की, उनको उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपका प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट किया। तो एसआईटी रिपोर्ट वाज फाइल्ड एज यू रिमेंबर इन February 2012, 8 फरवरी। तो द हर्डल in between no action suggested by SIT was only the protest petition. When it is rejected, SIT report is accepted. Recommendations are accepted. Now, as per Supreme Court order dated 12/9/2011, Supreme Court ने कहा कि now I release the investigation from our monitoring and now every step will be according to CRPC. So now it is open for complainant or their counsel to go for according to CRPC either for revision or anything, whatever they like. Do you believe that the court's order now is a vindication of your own investigation? SIT impartiality has been confirmed. But has the judge made any observation on the SIT investigation? It must be in the order. I have not read it. He will supply copy after 15-20 minutes. It is about 350 pages. 350 pages order. I will have to study before answering your question. But which means that it has validated whatever SIT has done its investigation by accepting your report? That means no action against all the 63. Our recommendation was that there is no evidence in the field during investigation. No evidence surfaced. कोई भी हमारे पास ऐसा साक्ष्य नहीं आया जिसमें जो 63 आदमी का जो नाम कंप्लेंट में जाकिया जी ने दिया है, किसी पर हम कोई क्रिमिनल एक्शन रिकमेंड कर सके, इसलिए क्लोजर किया जाए। One of the biggest allegations made against SIT was that it is not acting impartially, and that is only criticism in the opposition. That is only criticism in the protest petition. When protest petition has been dismissed overall in entirety, then that allegation also goes. एक चीज सिंप्लीफाई करती है, अब जब ये प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट की जा चुकी है, क्या अब मोदी के सामने कोई मामला चल सकता है या नहीं? अगर ऊपर हाईकोर्ट से ये तो शुरुआत है। एक आज न्यायिक प्रक्रिया का एक आदेश आ गया जो मोदी एवं 62 जो उसमें अक्यूज नेम्ड है उनके फेवर में आया कि उन पर कोई ये कोर्ट जो कॉग्नियस ले सकती थी, उन्होंने कहा कि कोई केस नहीं बनता क्रिमिनल केस चलाने का। But for now it is a big relief for everyone. You may conclude it. It is your conclusion. I can't say, but no action, no criminal action as per request of Jakia. Now, if this order is set aside, something else is passed by higher court. Who will check? But as of now कोई क्रिमिनल केस इनिशिएट नहीं किया जा सकता। हाँ, अभी नहीं किया जा सकता। कंप्लेंट पे नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि 9 केसेस का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास दिया था SIT के पास। 6 का जजमेंट हो चुका है जिसमें अपील पेंडिंग है। कोई भी अपील रिमांड हो सकता है। कुछ अगर नाम किसी गवाह में आया हो जिसको जज ने नहीं कंसिडर किया हो, अगर उसको समन करने का कोर्ट को अगर रिमांड पे ऑर्डर होता है तो दैट कैन बी डन। God knows till what age I will be able to serve. They may continue me as their lawyer. It is up to them. I am only to be engaged. जमवार साहब, आप SIT के वकील हैं। आज की तारीख में मोदी के खिलाफ गुजरात में 2002 दंगों से रिलेटेड कोई भी केस एग्जिस्ट करता है? कोई भी नहीं रहा। अब कोई भी केस उन पर क्रिमिनल का नहीं रहा, क्रिमिनलिटी का। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस का, अगर कोई ये जो कमीशन बैठी हुई है, ये कमीशन तो है, वो रिपोर्ट में क्या देती है? वो रिपोर्ट जो जाएगी नानावती शाह कमीशन, नानावती मेहता कमीशन, अब कहिए साथ तो नहीं रहे, नानावती मेहता कमीशन अगर गिल्टी करार देती है तो इट विल बी ओनली फैक्ट फाइंडिंग एडवाइस एंड दैट रिपोर्ट विल हैव टू बी प्लेस्ड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर एज ऑल्सो सेंट्रल पार्लियामेंट एंड इफ दे अगेन डिसाइड investigation and trial, that will be a long drawn battle. I can't forecast. Only two. Against 2 I had given, because Supreme Court also separately I had given report for Gondia and Tandon that they have committed lapses in their duty
फॉर लैप्सेस गवर्नमेंट में सी लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, सर्विस मैटर। There is no criminal case against any of these. At present, not on this complaint. Whatever are pending in the trial, Modi Tandon, if they are facing in the No, I'm talking about this. this Jakia's complaint against Modi and others goes in vain. मोदी जी के बारे में मुख्य आर्गुमेंट क्या दिए? अब ये तो आप कंक्लूड कर लीजिए। मोदी जी गिल्टी नहीं थे, उसके बारे में मुख्य आर्गुमेंट क्या दिया आपके? हमने रिकमेंड किया था, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने किसी को भड़काया हो, कोई आदेश दिया हो कि इन लोगों को छूट दो, ऐसा कोई नहीं है। संजीव भट्ट के एलिगेशन संजीव भट्ट के एलिगेशन को हमने डिबेट किया है, आपने ओपन कोर्ट में मेरा सुना है। संजीव भट्ट इज नॉट रिलायबल। तो मतलब आपके इस आर्गुमेंट को कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर मान लिया तभी तो उनका रिजेक्ट हुआ, वरना हम रिजेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू सर। जाकिया का जो पिटीशन रिजेक्ट हुआ उसका ग्राउंड क्या क्या? अब ये तो जनरल सेक्ट पढ़ना पड़ेगा हमें, 350 पेज पढ़ने के बाद बताऊंगा।